پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں، پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. We shall surprise you. We shall surprise you. The tea is fantastic. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 27 فروری کا دن پاک فضائیہ اور پاکستان کی تاریخ کا ایک درخشاں باب ہے. بھارتی فضائیہ نے رات کے اندھیرے میں سرحدوں کی خلاف ورزی کی، لیکن پاکستانی فضائیہ نے اگلے ہی روز دن کے اجالے میں بھارت میں گھس کر ایسا سبق سکھایا کہ بھارت اب تک وہ خفت مٹا نہیں پایا. پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا، دشمن کو سرپرائز دیا، اور وہ سب کچھ ساری دنیا نے دیکھا. 27 فروری فتح کا دن ہے. جب بھی یہ دن دوبارہ آئے گا، ہر پاکستانی کا سینہ چوڑا ہو جائے گا. ہر پاکستانی اپنی افواج اور فضائیہ پر فخر کرے گا، اور فخر کیوں نہ کرے. بہادر شہیدوں نے بھارت میں گھس کر ٹارگٹس لاک کیے، 2 جہازوں کو مار گرایا. دنیا بھر میں بھارت کو شرمندگی کا باعث بننے والے ابھینندن کو گرفتار کیا. پاک فضائیہ نے دنیا بھر میں اپنی دھاک بٹھائی. اس وقت DGISPR میجر جنرل آصف غفور نے پریس کانفرنس کی، دنیا پر واضح کیا کہ ہم نے بھارت میں گھس کر ٹارگٹ لاک کیے. جو چاہتے وہ کر سکتے تھے، مگر ہم ذمہ دار ریاست امن چاہتے. ایئر فورس نے اپنی لائن آف کنٹرول کے پار انڈین آکوپائیڈ کشمیر میں 6 ٹارگٹس انگیج کیے. تو جب ہماری ایئر فورس اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو ٹارگٹس ہم نے سلیکٹ کیے ہوئے تھے، ان ٹارگٹس پہ ہمارے پائلٹس نے لاک کیا، اور پھر اس کو لاک کرنے کے بعد تھوڑا فاصلے پہ ہم نے کھلی جگہ پہ وہ سٹرائکس کی. پاکستان کے پاس کیپیبلٹی ہے، ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم ذمہ دار رہنا چاہتے ہیں. ہم ایسکیلیشن نہیں کرنا چاہتے، ہم جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی امن کا پیغام دیا، عوام نے بھی امن کا پیغام دیا، اور ہم کسی بھی صورت اس خطے کو جنگ کی طرف لے کر نہیں جانا چاہتے. ساری دنیا کا میڈیا بھارت کی پسپائی کا گواہ بن چکا تھا. پاکستان دنیا بھر کو باور کروا چکا تھا کہ ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. پھر وزیر اعظم عمران خان قومی اسمبلی میں آئے اور جذبہ خیر سگالی کے تحت بھارتی پائلٹ کو رہا کرنے کا اعلان کیا. دشمن پر واضح کیا اور ساری دنیا کو بتایا کہ ہم ذمہ دار ریاست ہیں، امن چاہتے ہیں. بھارتی پائلٹ کو رہا کرنے کا فیصلہ دنیا بھر میں سراہا گیا. ہر ذی شعور جانتا ہے کہ اس فیصلے سے پاکستان کا قد اونچا ہوا. پائلٹ ہم نے پکڑا ہوا ہے. ہم ایز اے پیس جیسچر ہم اس کو کل رہا کرنے لگے ہیں ہندوستان کو واپس. یہ تو ہے اس دن کی کہانی جب بھارت اور بھارتی میڈیا کو سانپ سونگ گیا تھا. پاکستانی جشن منا رہے تھے، بھارتی میڈیا ماتم کر رہا تھا. لیکن اب 1.5 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے بعد کچھ ایسا ہو گیا کہ بھارتی میڈیا ذلت اور رسوائی کے وہ داغ دھونے کی کافی کوشش کر رہا. جی ہاں، یہ وہی بھارتی میڈیا ہے جسے اس وقت سانپ سونگ گیا تھا، لیکن اب شور شرابہ کر رہا ہے. اس کا شور شرابہ کرنا بنتا بھی ہے، کیونکہ جب ہمارے سینئر سیاسی رہنما حکومت کی مخالفت میں اس قدر آگے بڑھ جائیں گے کہ دشمن کے بیانیے کا سہارا لینے لگیں گے، تو ایسا تو ہوگا، اور ایسا ہی ہوا. وزیر اعظم عمران خان اور حکومت کی مخالفت میں ایاز صادق نے سب حدیں عبور کر دی. حکومت کو نیچا دکھاتے دکھاتے ملک کی بے توقیری کرنے لگے. عظیم فتح کو شکست اور خوف سے منسوب کرنے لگے. بات کرتے ہیں. مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دیا اور چیف آف آرمی سٹاف تشریف لائے. پیر کانپ رہے تھے، پسینے ماتھے پہ تھے، اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا، فورن منسٹر صاحب نے، کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں، چونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے. وہ کوئی ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا، کچھ نہیں ہونا تھا، صرف گھٹنے ٹیک کے ابھینندن کو واپس بھیجنا تھا. جو ایاز صادق کا بیان وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے متعلق تھا، لیکن بھارتی میڈیا نے اس پر وہی کیا جو وہ ہمیشہ سے کرتا آیا ہے. لیکن حقیقت کو کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ ایاز صادق کے اس بیان کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی، اس متعلق DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے اپنی پریس کانفرنس میں واضح کیا کہ بھارتی جنگی قیدی ونگ کمانڈر ابھینندن سے متعلق گزشتہ روز دیے گئے متنازع بیان میں تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے.
جس کی درستگی کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کل ایک ایسا بیان دیا گیا جس میں قومی سلامتی سے متعلق معاملات کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ پلوامہ واقعے کے بعد 26 فروری 2019 کو بھارت نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی۔ دشمن جو بارود پاکستان کے عوام پر گرانے آیا تھا وہ خالی پہاڑوں پر پھینک گیا، جس میں نہ صرف انہیں منہ کی کھانا پڑی بلکہ پوری دنیا کے سامنے شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ حکومت پاکستان ذمہ دار ریاست ہونے کے ناطے بھارتی جنگی قیدی ونگ کمانڈر ابھینندن کو بھی رہا کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ پاکستان نے کیا تھا۔ پلوامہ واقعے کے بعد 26 فروری 2019 کو ہندوستان نے تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف جارحیت کی، جس میں نہ صرف انہیں منہ کی کھانی پڑی بلکہ انہوں نے پوری دنیا میں افواج پاکستان کے چوکنا اور بروقت رسپانس نے دشمن کے عزائم کو ناکام بنا دیا۔ دشمن کے جہاز جو بارود پاکستان کے عوام پر گرانے آئے تھے، ہمارے شاہینوں کو دیکھتے ہی بدحواسی میں خالی پہاڑوں پر پھینک کر چلے گئے۔ حکومت پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر امن کو ایک اور موقع دیتے ہوئے بھارتی جنگی قیدی ونگ کمانڈر ابھینندن کو بھی رہا کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے ایاز صادق کو متنازع بیان پر کافی کھری کھری سنائی۔ بولے آپ ہوتے کون ہیں پاکستان کی فتح کو شکست میں بدلنے کا بیان دینے والے؟ پاکستان جنگ نہیں چاہتا تھا، ذمہ دار ریاست کا مظاہرہ کیا، بیان پر معافی مانگنا ہوگی۔ نیشنل اسمبلی کے سابق اسپیکر، اس کا پی ایم ایل این نون سے وابستگی، اتنی سینئر پوزیشنز پہ رہنا، دشمن کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی آپ نے بات کی۔ آپ ہمارے ملک کی فتح کو شکست میں تبدیل کر رہے ہیں۔ آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ اداروں پہ حملہ کرتے ہیں، آپ فوج میں تقسیم کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ ذمہ دار ریاست کی حیثیت سے، کیونکہ ہم جنگ نہیں چاہتے تھے، جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتے، نہ ہم نہ ہمارا دشمن، کہ یہ جو ابھینندن کا جو بیان ایاز صادق نے دیا ہے، اس پہ قوم ان کا حساب لے گی، اور ہم چاہیں گے کہ ایاز صادق اسمبلی میں کھڑے ہو کر معافی مانگیں، اور اسی طرح جو پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی کھڑے ہو کے اور اپنی ندامت اور اس کی تنقید اور اس کی مذمت وہ کرے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے بھی ایاز صادق کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا، کہا کہ نہ تو انہیں اپنی عزت کا احساس ہے اور نہ ہی ملک کی عزت کا، جبکہ وزیر اسد عمر یہ کہتے ہیں کہ وہ اس میٹنگ میں موجود تھے جس کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس میٹنگ میں تو ابھینندن سے متعلق بات ہی نہیں کی۔ سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایاز صادق نے ایسا سفید جھوٹ کس کو خوش کرنے کے لیے بولا۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر معاملہ یہاں تک پہنچا کیسے؟ ایاز صادق صاحب جیسے سینئر پارلیمنٹرین کی جانب سے ایسے بیان کا مقصد کیا تھا؟ گو کہ ان کی جانب سے وضاحتی بیان بھی سامنے آیا، مگر کیا یہ وضاحتی بیان اب کافی ہوگا؟ ایاز صادق صاحب کا یہ بیان مستقبل میں استعمال ہوگا، بھارتی میڈیا فیس سیونگ کے لیے استعمال کرے گا، پاکستان کی عظیم فتح کو شکست قرار دینے کا پروپیگنڈا کرے گا۔ لیکن کیا ایاز صادق صاحب کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ان کے بیان کو دشمن ملک کس طرح سے استعمال کرے گا؟ یہ بیان کیوں دیا گیا؟ مقصد کیا تھا؟ کیا ایاز صادق اس بیان پر قوم سے معافی مانگیں گے؟ کیا انہیں معافی مانگنی چاہیے؟ اور مستقبل میں اس بیان کی کیا اہمیت ہوگی؟ اسی تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید خان اور فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے رہنما پی ٹی آئی۔ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ بریگیڈیئر صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی، بڑی ہی ایک شرمندگی کی بات میں کہوں گی کہ یہ اس وقت ہے پورے پاکستان کے لیے کہ کس طریقے سے ایک ایسی فتح جس کو کہ سیلیبریٹ کیا پورے پاکستان نے، شرمندگی اٹھانا پڑی نا، جس طریقے سے بھارت دیکھیں اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آئی کہ آخر اس طرح کا بیان، اور یہ بڑی بڑی کامن سینس کی ایک بات ہے کہ اگر اس طرح کا بیان دیا جائے گا تو اس کو بھارت کس طریقے سے اٹھائے گا، بھارتی میڈیا کس قسم کا پروپیگنڈا کرے گا، لیکن اس کے باوجود اس طرح کا بیان جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت اس بیان کے بعد، جس طرح سے بھارت جو ہے وہ اس کو پروپیگیٹ کر رہا ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ پہلے تو میں آپ کو کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کا ایک بہت ہی ایکسپلوسیو اور میں سمجھتا ہوں ویری ویل ریسرچڈ آپ نے جو انٹرو دیا ہے، اوپننگ دی ہے with all those clips، آپ نے واقعی 27 فروری کی یاد جو ہے وہ تازہ کر دی ہے، تو I will congratulate you on that۔ دوسری بات امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں coming straight to the point، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نہایت irresponsible، غیر ذمہ دارانہ
और जिसको कहते हैं ना अनबैलेंस्ड जो बात की है अपना अय्याज सादिक साहब ने, ये मुझे लगता है कि वही एक्सटेंशन है जो नवाज शरीफ की और मरीम नवाज साहबा की जो चल रहा है नैरेटिव, जो उनके हमले चल रहे हैं नाम लेके मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर, फौज के अंदर एक रिफ्ट पैदा करना बिटवीन दी सीनियर एंड द जूनियर लीडरशिप, उसके बाद सिविल और मिलिट्री के जो अच्छे ताल्लुकात था उनमें एक दरार डालना, और फिर पाकिस्तान के आवाम और फौज के दरमियान एक वो जो एक रिश्ता है मोहब्बत का और सपोर्ट का, उसमें भी एक वेज क्रिएट करना ताकि लोगों में एक मायूसी पैदा हो इस तरह की। मैं समझता हूँ कि अय्याज सादिक साहब जो हैं, देखें ये एक बहुत मैच्योर्ड और सुलझे हुए सियासतदान की इनकी रेपुटेशन है। हमारे साबिक स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली है, तो मैं तो खुद हैरान था जब वो ये बात कर रहे थे। सीजन्ड पॉलिटिशियन, और तो जब इतना अच्छा आपको बिल्कुल हो जाए सियासत करते हुए तो आपको कुछ अंदाजा तो होता है। आप समझते हैं कि क्या ये प्लान्ड बयान था, क्योंकि आपने कहा कि आपको लगता है ये तसलसल है उस बयानिए का? मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक्सटेंशन है, और जो एक फजा क्रिएट की गई है इस वक्त मरीम नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने, मेरा ख्याल है कि उसी फजा के अंदर अब कुछ इनके लीडर जो हैं वो जो कि पहले बड़े अपनी उनकी हमेशा बैलेंस्ड अप्रोच होती थी, नाप तोल की बातचीत करते थे, जिसमें ऑफ कोर्स अय्याज सादिक साहब शामिल हैं। देखें इन पे तो मुझे नहीं पता, आई डोंट थिंक देयर इज एनी करप्शन केस अगेंस्ट हिम आल्सो, तो मैं तो इनको वैसे नीट एंड क्लीन पॉलिटिशियन समझता हूँ। लेकिन अब आप देखें कि ये भी आप इनको जज्बात कहें या बाय डिजाइन कहें, लेकिन बहरहाल इन्होंने नुकसान तो पहुंचाया कि एज अ साबिक टॉप पब्लिक ऑफिस होल्डर इन्होंने वो बात की जो कि तारीख और हकायक के मुनाफी थी, और जिसपे इन्होंने इतना प्रोवोक किया कि फौज जो बिल्कुल अपने आप को लास्ट रिजोर्ट पे आती है अगर कोई बात क्लैरिफाई करने के लिए, जब उन्होंने देखा कि ये गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मुझे क्विकली एक ब्रेक लेना पड़ा है। चौहान साहब भी हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे, एक ब्रेक के बाद क्विकली वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी, वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद फयाज हसन चौहान साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और बात कर रहे थे कि अय्याज सादिक साहब ने आखिर किस तरीके से 27 फरवरी एक बड़ी ही अजीमुल शान किस्म की विक्ट्री है जो पाकिस्तान के लिए, इसको एक नया पहलू, एक नया रंग जो है वो देने की कोशिश की। इससे पहले ये गिला तो किया जाता था आवाम की तरफ से, हमारी तरफ से भी, कि आवाम की बात नहीं होती, आवाम के इशूज के ऊपर सियासत होती है, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि मुल्क की सालमियत, मुल्क की बका या मुल्क की बकार के ऊपर भी सियासत जो है वो मुकद्दम होने लगी है। फयाज हसन चौहान साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। मुझे ये बताइएगा कि अय्याज सादिक का जो बयान है, इस वक्त भारतीय मीडिया जो है वो जश्न मना रहा है उसके ऊपर, समझ से बालातर है कि आखिर क्यों कर ये जरूरत पेश आई कि अजीम फतह को शिकस्त और खौफ के साथ जो है वो मंसूब करना पड़ गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज मैं ये समझता हूँ कि अय्याज सादिक साहब ने नून लीग को लीडर की हैसियत से जो कल असेंबली के फ्लोर पर बयान दिया, पूरी पाकिस्तानी कौम का सर शर्म से झुकाया, और पिछले 2 दिन से इंडियन मीडिया शादियाने बजा रहा है। और आज मैं अभी 1 घंटा पहले आपके प्रोग्राम की, मैं बड़ा मशहूर जमाना इनका रिपब्लिक टीवी है, उसमें मेजर गौरव आर्या की जो बदनाम जमाना करेक्टर है जो है वो एक अजीत देओल है, और ये मेजर गौरव आर्या का जो साबिक डायरेक्टर है इंडियन ब्रॉडकास्ट, मेरी उसके साथ 4 मिनट की जना मुमारी हुई इसी इशू के ऊपर। आप यकीन जाने, मुझे हैरानगी है कि अय्याज सादिक ने आज अपनी इज्जत को और अपनी पार्टी की इज्जत को तार-तार कर दिया। हमने एक फतह हासिल की थी कि वो इंडियन फोर्स, एयर फोर्स, और वो इंडियन फोर्स वो इंडिया के जो हमसे 7 गुना बड़ा है, हमने 27 फरवरी 2019 को हमने अजीमुशान फतह हासिल की थी, हमारी पाक अफवाज ने, हमारी एयर फोर्स ने, और दिन दिहाड़े हमने इनके 2 प्यारे मार गिराए थे। फिर उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की मिसाल ताज़ा करते हुए, याद ताज़ा करते हुए, वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने, जिस तरह उसने रिचर्ड शेरदिल को मैदान जंग के दरमियान तलवार और घोड़ा दे के कहा था, जब उसकी तलवार और घोड़ा नाकारा हो गया था, तो नया तलवार और घोड़ा दे के कहा था कि आओ जंग में दोबारा से हम लड़ाई करते हैं। बिल्कुल इसी तरह वो मिसाल ताज़ा करते हुए वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इनका जो पायलट हमने पकड़ा था अभिनंदन, उसको चाय पिला के उसके चेहरे पर थपकियां देके इनको एक दूसरे अंदाज से जलीलो खार करके उसके वापस उनके पास भेजा था। और पूरी दुनिया के अंदर वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की और पाकिस्तान की एक मुल्क और रियासत की हैसियत से इज्जत और वकार में इजाफा हुआ।
चौहान साहब मुझे बताइएगा कि अब हुकूमत क्या करने जा रही है, हुकूमत क्या कोई इसके ऊपर एक्शन लेने जा रही है? क्योंकि इस बयान से जैसा कि DGISPR ने भी कहा कि हर सतह पर गुस्सा पाया जाता है, अवाम को भी जो है वो मायूसी है और परेशानी है और गुस्सा है कि आखिर ये किस किस्म का बयान है। आपको याद होगा कौम ने किस तरीके से जश्न मनाया था इस कामयाबी का। देखिए, इसमें कोई ढकी छुपी तो चीज ही नहीं है ना आयशा। आप मुझे ये बताएं, सतह हमारी हुई, 2 प्यारे इनके मार गिराए, दिन दिहाड़े ये लोग आए पाकिस्तान पे हमला करने, जलीलो खार होकर जूते छोड़ के भागे, अपना हेलीकॉप्टर तक गया ना, कुछ तो लोग कहते हैं कि अपना हेलीकॉप्टर खुद तबाह कर दिया, और फिर उसके बाद मिन्नते तरले करके अभिनंदन को वापस किया, मिन्नते तरले करके, और फिर आगे से गुडविल जेस्चर में रिचर्ड शेर दिल को जिस तरह वापस की तलवार और घोड़ा सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपनी सारी जनाब मुल्क के जितने अदारे हैं, मुल्क की जितनी एलीट्स है, पॉलिटिकल एलीट है, उनको एतबार में लेके इनको वापस किया, और ये उनके मुंह पे तमाचा था इंडिया के, आलमी सतह पे गिराई हुई पाकिस्तान की। लेकिन बिल्कुल आपकी बात ठीक है, अभी इसके ऊपर सारे कानूनी पहलू देखेगी वफाकी हुकूमत, और देखने के बाद इसके हवाले से मैं तो कहता हूँ कानूनी तौर पे एक्शन लेना चाहिए। सही, अच्छा ठीक है, एक्शन लेना चाहिए। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये कोई पहला बयान नहीं है, ये एक तसलसल है बयानात का। जब इस तरह के बयानात दिए जाएंगे तो फिर तो ये ख्याल आना या ये तासुर उभरना जो है वो यकीनी हो जाएगा कि शायद किसी को खुश करने की जो है वो कोशिश की जा रही है, किसी की लाइन लेने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मैंने तो आपको कहा कि मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि नॉर्मली याद सादिक साहब इसमें लूज गुफ्तगू नहीं करते हैं, इररिस्पॉन्सिबल गुफ्तगू, लेकिन जिस तरह उन्होंने ये सारा मामला को तोड़ मरोड़ करके डिस्टॉर्ट करके पेश किया है, और जिसमें पाकिस्तान के अवाम जो है वो इस वक्त बड़ा सा गुस्से में है। आप सोशल मीडिया जाके देखें कि याद सादिक साहब के खिलाफ क्या वहाँ पे इस वक्त लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे तो कोई शक नहीं कि मैं आपको कहा था कि ये वो नवाज शरीफ साहब मरीम नवाज का जो बयानिया है उसकी एक्सटेंशन भी आगे गए, और मेरा ख्याल है ज्यादा हद क्रॉस करके, रेड लाइन क्रॉस कर गए, और जाहिर बात है उनको खुश करने के लिए, ताकि कि देखें जी मैं भी अभी शामिल हो गया हूँ आपके साथ इस कैंपेन में, फौज की मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट करने में, उनको बदनाम करने में। और बल्कि मैं आपको फिर दोबारा एक बात कहूँगा, मुझे ये लग रहा है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोग PMLN के, नवाज शरीफ और मरीम नवाज के अलावा कुछ और लोग भी PMLN की लीडरशिप में, कि किसी तरह फौज को प्रोवोक किया जाए कि हम उनको कंट्रोवर्सी में ड्रैग कर रहे हैं, हम उनको डिफिकल्ट सिचुएशन में निकाल के बाहर लाएं, ताकि उससे फिर और कंट्रोवर्सी जनरेट हो, और ये लोग और फिर इंडियन मीडिया जो है वो एंजॉय करे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं ये समझता हूं कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि इनको, अगर ये एक इनमें वो पॉलिटिकल करेज है और वो इनको पार्लियामेंट में आना चाहिए, पार्लियामेंट के फ्लोर पे आके इनको कौम से जो है वो माफी मांगनी चाहिए। लेकिन बात अब जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान के अवाम अब सवाल ये कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे टॉक शो में, वैसे जब वो लोग मिलते हैं आपस में, वो कह रहे हैं क्या रियासत कमजोर हो गई है? ये सिर्फ इतना तो नहीं ना, देखना उधर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 3-4 तकरीरें वो ऐसी कर चुके हैं, और इस तरह की तकरीरों की मेरे ख्याल इजाजत तो होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि उनकी स्पीचेस को ब्लॉक करना? नंबर 1। नंबर 2, मरीम नवाज साहबा वो देखे ना, शी तो कॉन्वेक्ट, उनको तो बेल मिली थी उनकी तीमारदारी के लिए नवाज शरीफ साहब के। तो आप मुझे ये लोग कह रहे हैं कि भाई वो सियासत कर रही है, तो ये हो क्या है? मैं चौहान साहब यहीं से बात को लेकर आगे चलूंगी, ये सवाल आपके पास लेके आऊंगी। ये सारी जो बातें ब्रिगेडियर साहब ने बयान किया, अगर इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा तो ये मुल्क के लिए कोई मुनासिब या कोई बेहतरी की बात तो नहीं है। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो फिर मुस्तकबिल में मसाइल पैदा हो सकते हैं, यकीनन लोगों के ऊपर भी इसका असर होता है, और आवाम फिर ऐसी चीजों को जो है वो सच तस्वुर करने लगती है। तो इसकी कोई रोकथाम तो होनी चाहिए यकीनन। बात यह है कि excess of everything is bad, हर चीज की एक हद होती है। पिछले 2-2.5 माह से पूरी पाकिस्तानी कौम नवाज शरीफ की, उसकी जुबान, उसकी बेटी की जुबान, उसके जो अलाइज अब जना महमूद खान चकजई की जुबान, मौलवी फजल रहमान की जुबान, इनके मुख्तलिफ जलसों के अंदर पाक फौज और अदारों के खिलाफ जुबान, ये जो इन्होंने इस्तेमाल किया है, पूरी पाकिस्तानी कौम के कान खड़े हो गए हैं। और अब तो जो बम धमाके शुरू हुए, ये सारी एक प्री प्लान चीजें हैं, मुल्क दुश्मन ताकतों की और इंडियन लॉ की और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट की प्री प्लान। इधर से पॉलिटिकली इनको मूव किया हुआ है, ठीक है जी, उधर से बम धमाके हो रहे हैं, उधर से जनाब वो इंडियन चैनल पे बरमला कह रहे हैं कि अगले 1-2 माह के अंदर हम सबक सिखा देंगे पाकिस्तान को। तो अब सारी चढ़ियां मलाएं, सब चीजें समझ आ जाती हैं, और पाकिस्तानी कौन तो समझ आ रही है। सही।
ब्रिगेडियर साहब, ये जो कौमी सलामती से मुतालिक मीटिंग्स होती हैं या इसमें जो गुफ्तगू होती है, इसमें जो फैसले होते हैं, सियासी बयानबाजी के लिए इसको इस्तेमाल करना यकीनन बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं है, बल्कि बड़ी गैर मुनासिब बात है और इससे मुल्की वक़ार को, मुल्की सालमियत को ख़तरा हो सकता है। आपको नहीं लगता कि कोई कानून ऐसा होना चाहिए इसके ऊपर, कोई कार्रवाई जो है ताकि जिसके तहत हो सके? देखें, जितने पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, जितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, मिनिस्टर्स, MNAs, MPs, जो सारे इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठते हैं, गवर्नमेंट मीटिंग में बैठते हैं, अगर वो मीटिंग्स के अंदर वाले जो बातचीत है, कंटेंट्स, वो आके बाहर डाइवर्ज करना शुरू कर दें, तो ये तो दिस इज अ वायलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। खासकर कौमी सलामती और जो सेंसिटिव मामलात हैं उसमें तो वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और देखें, ये डॉन लीक्स क्या था? यही तो हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऑफिस में जो मीटिंग हो रही थी बिटवीन चेयर बाय नवाज शरीफ एंड अटेंड कर रहे थे सर्विस चीफ, वहाँ जो सेंसिटिव बातचीत हुई उसको जनाब वो उनका जो मीडिया सेल था जिसको मरीम नवाज लीड कर रही थी, वो उन्होंने बातें आउट कर दी वहाँ पे, जिसका मशहूर नाम है बदनामी ज़माना डॉन लीग। लेकिन क्या हुआ उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप ने, फिर देखे ना, बात वही मैं कहता हूँ, कमजोरी फिर हम दिखाते हैं तो फिर यही होता है। उन्होंने जो हमने सुन रहे हैं बड़ी ऑथेंटिक के जनाब फिर मरीम नवाज साहबा को छोड़ दिया गया कि जनाब बच्ची हैं, कोई बात नहीं, गलती हो गई, आइंदा सीख जाएंगी, आइंदा नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। तो आप देखें, शी हैज रिटर्न्ड विद अ लॉट ऑफ वेंजेंस। एक तो ये, दूसरी बात ये है कि आज एक बड़े बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, टाइम हमारे पास खत्म हो गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद खान साहब और फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में वक्त देने का। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आना है तो बात करनी है मुझे कि PMDC के तहलील होने के बाद PMC के अंदर जो नित नई पॉलिसीज हैं आखिर किस तरीके से डॉक्टर्स कम्युनिटी को परेशान कर रखा है, बल्कि डॉक्टर्स ही नहीं, तलबा भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। क्यों, क्या वजूहात हैं इसकी? और जब डॉक्टर्स पाकिस्तान के दुनिया भर में जाने माने जाते हैं तो यहाँ पर उनको क्यों इस तरीके का टफ टाइम दिया जा रहा है? एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। नए पाकिस्तान में तो तालीम आम होना थी, आला तालीम के लिए आसानियां पैदा करना थी, मयार तालीम बेहतर बनाना था, मगर हुकूमती इक़दामात सबके बरक्स नजर आ रहे हैं। हुकूमत की नित नई पॉलिसीज के बाद ये कहने में कोई यार नहीं कि हुकूमत ये चैलेंज कर रही है कि अब डॉक्टर बन के दिखाओ जरा। जी हाँ, PMDC को तहलील करने के बाद वजूद में आने वाली PMC की नित नई पॉलिसीज और अजीबो गरीब तजुर्बात ने ना सिर्फ डॉक्टर्स कम्युनिटी बल्कि तलबा के नाक में भी दम करके रखा हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल ने मुल्क भर की मेडिकल यूनिवर्सिटीज को टेस्ट लेने से रोककर नई पॉलिसी तरतीब दी है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन PMC के कानून के मुताबिक रवा बरस पहली बार पूरे मुल्क में तलबा का एक ही एंट्री टेस्ट होगा। कानून के मुताबिक सबको एक ही निसाब के तहत ये इम्तिहान देना है, लेकिन इससे पहले तक हर सूबे और हर इदारे का निसाब अलग रहा है। दूसरी तरफ PMC ने इम्तिहानात के लिए तारीख का ऐलान तो कर दिया, लेकिन गुज़श्ता 3 हफ्तों में 4 बार निसाब को तब्दील किया गया है। तलबा परेशान है कि अब जब इम्तिहान में 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया है तो वो क्या तैयारी करेंगे। मेडिकल टेस्ट पॉलिसी में इस तब्दीली की वजह से 1.5 लाख से जायद तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। दूसरी जानिब PMC में गैर जमहूरी तरीकों से की जाने वाली सियासी तैनातियों ने मामले को मजीद उलझा कर रख दिया है। जल्दी में बिना सोचे समझे ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जिन्हें बार बार तब्दील किया जा रहा है, जो तलबा के लिए ज़हनी अजियत का बाइस बन रहे हैं। इस हवाले से ना तो मेडिकल कॉलेजेस को एतमाद में लिया जा रहा है और ना ही तलबा के मुतालबात को किसी भी खातिर में लाया जा रहा है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन अपने क़याम से लेकर अब तक मुतनाज़ा ही रहा है। यंग डॉक्टर्स भी कमीशन के कवानीन को मानने से इंकारी हैं। कमीशन के मेंबरान तैनातियां मेडिकल के शोबे को बेहतर बनाने से ज्यादा अपनों को नवाजने की एक कोशिश जो है वो करार दी जा रही है। नेशनल लाइसेंसिंग के इम्तिहान का ऐलान खुद एक बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है। हकीकत तो ये है कि कई तलबा और तालिबात PMC के रवैये के बाद मुल्क छोड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। इन्हीं मसाइल की निशानदेही पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस पामी के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब ने भी की थी। हमने अपनी ज़िंदगियाँ सारी की सारी ज़िंदगियाँ इस प्रोफेशन को दे दी हैं, लेकिन अफसोस उनकी सर्विसेज को रिकग्नाइज नहीं किया गया। कभी माफिया, कभी कुछ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि मेरे लिए शर्मनाक है। नए पाकिस्तान में आखिर ये सब हो क्या रहा है? वज़ीर-ए-आज़म को आखिर गाइड कौन कर रहा है?
लाखों तलबा और डॉक्टर्स के मुस्तकबिल से क्यों खेला जा रहा है? इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मियां नवीद, डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के, और इसके अलावा सलमान हसीब, डॉक्टर सलमान हसीब सदर हैं YDA के। दोनों स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का। मियां साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। PMC की जानिब से जो नई पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो ज़्यादा जो है उनको बॉदर कर रहे हैं? जी आशा, बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात तो जो है वो बहुत ज़्यादा है, ना सिर्फ डॉक्टर कम्युनिटी को बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स, खा वो यंग डॉक्टर्स हो, PMA हो, जो है वो पामी हो, जितने भी स्टेक होल्डर्स तमाम को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और मैं ये बता दूं कि ये पहली दफ़ा ऐसा होगा इस दौरे हुकूमत में एक ग्रैंड अलायंस बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि जिसमें यंग डॉक्टर्स होंगे, PMA होगा, उसके साथ साथ जो है वो PG डॉक्टर्स होंगे, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट होंगे, पामी होगी, उसके साथ साथ जो है वो जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स और उसके साथ प्रोफेसर, तमाम लोग जो है इस वक्त बड़ी जो है वो मायूसी का शिकार है। और एक कम्युनिटी, एक ऐसा लग रहा है कि ये कम्युनिटी जो बिल्कुल जो PMA जो इस PMC को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इंतहाई ऐसी शरायत रखी गई हैं जो मेरा नहीं ख्याल कि वो समझ से बालातर है, और एक सिस्टम को जो बर्बाद किया जा रहा है। तमाम अदारे ज़ोबों हाली का शिकार है, सरकारी अस्पतालों को फंड्स नहीं दिए जा रहे, और प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जिनकी हालत बतदरीज जो है वो ख़राब होती दिखाई दे रही है। लेकिन जब आप फंड नहीं देंगे तो ये अस्पताल कैसे बेहतर होंगे? आबादी में इजाफा होता दिखाई दे रहा है, और हमारे अस्पताल वही हैं जिस तरह उन्होंने एग्जाम्पल दी कि वो वहाँ पर मियो अस्पताल में पैदा हुए, उनकी फैमिली भी वहाँ पर पैदा हुई, लेकिन उस वक्त और आज में बड़ा फ़र्क है। इतनी आबादी बढ़ गई है, बजट हम दे नहीं रहे, तो ये एक बड़ा मामला ड्राइव के। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। व्हाट वाज द बेसिक आइडिया बिहाइंड PMC? PMDC अगर काम कर रही थी तो उसको तहलील करने की क्या वजह बनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए बड़ी वाज़ेह चीज़ें हैं। PMC के किसी एक शिक पे हमें इतराज़ नहीं है, बल्कि ये सारे का सारा कानून ही जो है जल्दबाजी में बनाया हुआ नज़र आता है। PMC में सबसे पहले तो इमरान खान साहब अपने मनपसंद के चूज्ड पर्सनैलिटीज़ को लगा के अपने मनपसंद के फैसले करवाना चाह रहे हैं। आपको पता है, हम ये समझते हैं कि पूरी दुनिया में जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं वो ऑटोनोमस होती हैं, चाहे वो लॉयर्स की लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, इंजीनियर्स की है, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड ये जो बॉडीज़ होती हैं ये ऑटोनोमस होती हैं ताकि वो अपने मेयार को बेहतर तरीके से रेगुलेट कर सकें। लेकिन इमरान खान साहब मुमकिन तौर पे चीज़ों को अपने शिकंजे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने एक जो ये पूरी दुनिया की, इंटरनेशनल दुनिया की ये रिक्वायरमेंट है, अगर वो आपके सेहत के मेयार को ग्रेड करेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपके स्टैंडर्ड्स रेगुलेट करने वाला अदारा हो उसके भी स्टैंडर्ड्स उनके अदारों के मुताबिक हों। तो PMDC एक इलेक्टेड बॉडी थी, लेकिन उसको एक ग्रेजुअल सोची समझी प्लानिंग के तहत तबाह बर्बाद किया गया। PMDC में एडहॉक काउंसिल को बैठा दिया गया, कई महीनों उसको बैठाए रखा, उसको इलेक्शन कराने की इजाज़त नहीं दी गई, इलेक्टेड लोग नहीं आए, वही सिलेक्टेड लोग बैठे रहे जिनका कोई हम समझते हैं स्टेक नहीं था। अब फिर अगेन इमरान खान साहब उसी तरह के सिलेक्टेड लोग लेके आएंगे, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि जनाब इमरान खान साहब को कोई किसने ये प्रीरोगेटिव दिया कि वो डिसाइड करें कि हु सूट्स बेस्ट फॉर दिस जॉब, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इसमें जो इन्होंने सिलेक्शन का इवन क्राइटेरिया रखा है उसमें सुबाइयत को हवा दे रहे हैं, सूबों में महरूमी की तरफ जा रहे हैं। उसमें पंजाब को और शायद सिंध को तो थोड़ी सी नुमाइंदगी दे दी गई है, लेकिन KPK को, बलोचिस्तान को, आज़ाद कश्मीर को, गिलगित को, इनको बुरी तरह जो है इनको नज़रअंदाज कर दिया गया है। तीसरा और सबसे अहम बात जो इसमें ये PMC बिल के बाद ये जो एग्जामिनेशन सिस्टम बदलने जा रहे हैं, एक तो आपने जैसा कि बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, ये जो एंट्री टेस्ट है वफाक के सुबाइयत से निकाल के ये वफाक के लेवल पे लेके जा रहे हैं, तो ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हो रही हैं। हेल्थ जो है वो बेसिकली एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है आफ्टर 18th अमेंडमेंट। आप अगर तमाम सूबों के सेहत के निज़ाम को यकसा करना चाहते हैं तो फिर इसको आप वफाक में लें। ये एक आईनी बहरान की तरफ सूरत हाल है। आप हाउ वुड यू प्रेशराइज सिंध के आप हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक बच्चों को सिंध में दाखिला दें, जब फंड उन्होंने देने हैं, जब बजट उन्होंने देना है तो आप उनको कभी। और इसके बायस हुआ क्या है कि सिंध ने ये डिसाइड किया है कि वो अपनी काउंसिल अलग बनाने जा रहे हैं। बलोचिस्तान में भी रात YDA बलोचिस्तान के दोस्त हमारे पास आए हुए थे, एहसास महरूमी बहुत तेजी से उभरा है क्योंकि उनकी जो एक नुमाइंदगी थी, रिप्रेजेंटेशन थी, मिसाइल जो है वो इसकी वजह से पैदा हो रहे हैं। मियां नवीद साहब, मुझे ये बताइएगा कि लाहौर आए थे वज़ीर आज़म साहब, डॉक्टर्स कन्वेंशन हुआ, क्या बात हुई वहाँ पर?
कोई मन्नी मसले सुने गए या उनके हल की जानिब कोई बात की गई? क्विकली बताइएगा मुझे ज़रा। देखिए जी, वहाँ पर जो हकीकी मसाइल हैं, जो अभी डॉक्टर सलमान हसीब साहब ने अभी आपको बताया कि इनके जो मसाइल के हैं, उसके ऊपर तो बिल्कुल बात नहीं की गई, बल्कि वही बात की गई है जिस तरह उन्होंने खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ड्रैब की पॉइंटिंग अथॉरिटी है, और उन्होंने ड्रैब के ऊपर बात कर दी कि वहाँ पर बेशुमार मसाइल हैं और आज तक जो है वो ड्रैब का जो रेगुलर चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं लगाया गया, उन्होंने खुद लगाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कोई जो इनके जेन्युइन मसाइल थे उसके ऊपर तो बात नहीं की गई, जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात थे उसके ऊपर तो बात नहीं की गई, और उसमें जो है वो डॉक्टर्स की इतनी बड़ी तादाद भी नहीं थी। मैं ये भी बता दूं कि बहुत सारी तादाद में जो सरकारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनको बुलाया गया और एक स्ट्रेंथ पूरी करने की कोशिश की गई। जो डॉक्टर्स हैं, खासकर यंग डॉक्टर्स हैं या फिर सीनियर डॉक्टर्स हैं या प्रोफेसर हैं, वो तो बिल्कुल इस सिस्टम को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, ना ही वो उस कन्वेंशन में मौजूद थे। ठीक है, ठीक है। अब सलमान, मुझे ये बताइएगा कि ये पीएमसी में मेडिकल एक्सपर्ट्स का ना होना, इसके पीछे क्या वजह है? और दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अब आपके मुतालबात क्या हैं, और अगर चीज़ें इसी तरीके से चलती रहती हैं और नहीं जो है अब इनका कोई हल निकलता, तो फिर क्या लाएअमल होगा? क्योंकि इवेंचुअली हम देखते हैं कि फिर एक आम आदमी जो है अब वो सफ़र करता है, एक आम मरीज़ जो है वो रुल के रह जाता है अगर कोई तहरीक शुरू होती है डॉक्टर्स की या फिर कोई एहतजाज का सिलसिला शुरू होता है तो। हाँ बिल्कुल, देखें ये सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपने सेहत के, पहले तो ये बात जान लें, बहुत ज़रूरी जान लें कि पाकिस्तान में मेडिकल एजुकेशन किसी भी तौर पर दुनिया के किसी भी मुल्क से पीछे नहीं है। पाकिस्तान के तलबा तमाम दुनिया में सर्व कर रहे हैं और इमरान खान साहब को इस बात से वेल अवेयर होना चाहिए। वो जैसे एक उन्हें शायद पढ़ा दिया जाता है कि जनाब तो साहबका हुकूमतें हर चीज़ तबाह कर गई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल एजुकेशन किसी की जरूरत नहीं थी कि वो तबाह कर सके, क्योंकि PMDC जो था वो एक अटानोमस अदारा था। ये जो एक अटानोमी ख़त्म कर रहे हैं, हाँ इमरान खान साहब को हम ये बात बता दें कि जब आप PMC लेके आएंगे दैट विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर हाउस, जिसके ऊपर सियासी लोग होंगे। एक वजीर का मतलब इसके कानून में है कि जितनी ग्रीवियंसेस रीएड्रेसल है वो भी मिनिस्टर करेंगे। तो जब आप पॉलिटिशियंस का रोल अदारों में बढ़ाएंगे, जब आप इलेक्टेड या सियासी वजीर आज़म का रोल अदारे के ऊपर बढ़ाएंगे, तो फिर को बिल्कुल ये होगा कि हुकूमतें लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। मियां नवीद साहब हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर सलमान हसीब साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों की ज्वाइन करने का। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके डॉक्टर्स की, जिसके मेडिकल एक्सपर्ट्स की दुनिया में हमेशा ही जो है वो बहुत मांग रहती है। अगर इस तरीके से ये मसाइल का दो चार हो जाएंगे, मसाइल से दो चार हो जाएंगे और इनके जो मुतालबात हैं उनको तस्लीम नहीं किया जाएगा, तो फिर यकीनन हमें ये भी उम्मीद रखनी चाहिए कि शायद बहुत सारे लोग जो हैं वो माइग्रेट करें या फिर यहाँ पर जो मयार है वो गिरे। तो ये वाकई एक लम्हा फिक्रिया जिसके बारे में हुकूमत को यकीनन सोचने की ज़रूरत है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफ़िज़।